Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Aviatrix and today's video is all about child and infant fairs. This video is going to be in English and in Hindi both. So both of you, if you're someone who only understands English and if you're someone who's looking for a Hindi explanation of this topic, you both can understand this very well. Because my notes are designed in such a way that if you are someone who knows English and just English, you can just read them and get a better understanding of what I'm teaching and what this topic is all about. Now, without wasting any time, let's get started. So the very first definition we have is of a child. So according to the airlines, a passenger who has reached his or her second birthday, but not his or her 12th birthday, as of the date of commencement of travel is known to be a child. Now, what do you mean by the date of commencement of travel? Is the date when your journey begins. Let's say someone is traveling from 21st March to 24th of March. So 21st March will be the date of commencement of travel and 24th March will be the date of termination of travel. Termination means end of travel. In other words, a passenger is considered a child when aged 2 to 11. Now these age limits are very important because these are set as per the ITA rules and regulations. So you cannot just change them according to your country rules. Now look into the second definition we have here is of an infant. So a passenger who is below 2 years of age as of the date of commencement of travel is considered to be an infant. Now चाइल्ड के लिए हमें क्या पता है, जो भी पैसेंजर 2 से लेके 11 इयर्स तक होगा वो चाइल्ड होगा, लेकिन इन्फेंट होगा 0 to 2 इयर्स ऑफ एज. ये हम कर क्यों रहे हैं? ये हम सिर्फ इस बेसिस पे कर रहे हैं कि हमें फेयर कैलकुलेट करना है. लेट्स से हमारे पास एक पार्क है जहां पे फीस है या फिर टिकट आप कह दो. जो टिकट है वो अडल्ट के लिए है 100 रुपीज, चाइल्ड के लिए वही टिकट आपको 75 की मिलेगी और इन्फेंट के लिए सेम टिकट आपको 30 की मिलेगी. ये सेम चीज चलती है एयरलाइंस के साथ, इसलिए एयरलाइंस इतना कैटेगराइज करता है चाइल्ड, इन्फेंट और अडल्ट को. नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. चाइल्ड कौन है? जो 2 से लेके 11 साल तक है. इन्फेंट कौन है? जो 0 to 2 इयर्स तक है. लेकिन अब इसमें एक कंडीशन आ जाती है which is this is only applicable to an infant. एज लिमिट की बात है. This is only applicable to an infant who is not occupying a seat because infant occupying a seat are charged the applicable child fare. तो क्या कह रहा है? जब भी infant इतने साल का होगा, हमें पता है जो 0 to 2 इयर्स में कोई भी हम टिकट बनाएंगे तो हम infant की बनाएंगे, लेकिन उसमें हम क्या चेक करेंगे कि जो वो इन्फेंट है वो एक सीट ऑक्यूपाई कर रहा है या फिर नहीं. ठीक है, क्योंकि चाइल्ड हमेशा सीट ऑक्यूपाई करता है. अ चाइल्ड कैन वॉक एंड सिट बट एन इन्फेंट कैन नॉट. तो अगर किसी के पेरेंट्स को, किसी इन्फेंट के पेरेंट्स को चाहिए कि उनका जो बेबी है वो एक सीट पे बैठे, तो उसके लिए वो अलग से सीट परचेज करेंगे. तो जब वो सीट परचेज करेंगे विद दिस एज लिमिट उसके अंदर पुट करके, तो वो एप्लीकेबल चाइल्ड फेयर देगा. लेट्स से उसको 30 पे करना था, लेकिन अब वो एक सीट ऑक्यूपाई कर रहा है, तो अब वो पे करेगा 75 रुपीज. आई होप इट्स क्लियर. नाउ इन्फेंट इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय एन एडल्ट. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चाइल्ड के साथ भी एक चीज अप्लाई होती है कि चाइल्ड हो या इन्फेंट हो, वो हमेशा किसी एडल्ट के साथ होगा, किसी ऐसे इंसान के साथ होगा जो कि फुल एप्लीकेबल अडल्ट फेयर पे कर रहा होगा. A child cannot travel alone and an infant cannot travel alone. They are always accompanied by a passenger who is paying the full applicable adult fare. This is the concept. According to the airlines, a passenger who has reached his or her 12th birthday as of the date of commencement of travel. So an adult is someone who is 12 and above.
तो अब हमें ये तीन बातें समझ में आ गई, हमने एज लिमिट्स देख ली हैं तीनों में और कंडीशंस भी समझ में आ गई, विच इज अकम्पेन्ड और एक सीट ऑक्यूपाई। अगर इन्फेंट सीट ऑक्यूपाई करेगा तो एप्लीकेबल चाइल्ड फेयर पे करेगा। चाइल्ड हो या इन्फेंट हो, दोनों ही एक ऐसे पैसेंजर के साथ ट्रैवल करते हैं जो कि एडल्ट फेयर पे कर रहा हो। अभी तक सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है। नाउ एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अकम्पेन्ड? When used for child and infant fares, accompanied means that the child or infant must be traveling with a passenger who is paying an applicable adult fare. I hope it's clear. Now, the second question we have is, what if an infant passenger turns 2 years of age en route? En route means journey के बीच में. मान लो जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है 21st of March एंड एंड हो रही है 24th of March. तो समवेयर बिटवीन 21 टू 24 एक पैसेंजर है जो इन्फेंट है, वो 2 साल का हो जाता है, क्योंकि जब उसने टिकट परचेज की तो वो 2 इयर्स का नहीं था, अब वो 2 इयर्स का हो गया बिटवीन द जर्नी। तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, कौन सा फेयर उस पर एप्लीकेबल होगा, इन्फेंट का या फिर चाइल्ड का? अब इसमें इसको कंफ्यूज मत करना कि वो सीट ऑक्यूपाई कर रहा है या नहीं, इसमें सिर्फ सिंपल इतनी बात कही है कि वो 2 इयर्स का हो गया बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ जर्नी, मतलब 24 मार्च से पहले पहले जर्नी के बीच में कहीं पे वो 2 इयर्स का हो गया। लेट्स से उसका बर्थडे ही था 22 को, 22 मार्च को जो इन्फेंट था वो 2 इयर्स का हो गया। अब वो इन्फेंट तो नहीं रहा, वो क्या हो गया, चाइल्ड। चाइल्ड क्या होता है, 2 to 11 इयर्स। अब वो एन रूट ही चाइल्ड हो गया, तो उस पर अब कौन सा फेयर लगाएं? इसको एक बार रीड कर लेते हैं। A passenger who is below 2 years of age as of the date of commencement of travel is considered as the infant. अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने सिर्फ कंसिडर क्या करना है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रैवल। जब उन्होंने टिकट परचेज की तब वो इन्फेंट ही था, तो अब वो पूरी जर्नी के लिए इन्फेंट ही रहेगा, चाहे वो 24 मार्च को वापस आ जाए। इज इट क्लियर? नाउ दिस मीन्स दैट fares to be assessed for the total journey shall be the applicable fares effective on the date of departure of the first sector. मान लो फर्स्ट सेक्टर है दिल्ली, दुबई एंड दिल्ली, ये हमारी जर्नी थी। तो फर्स्ट सेक्टर पे जो भी हो रहा होगा, अगर वो इन्फेंट है तो वो इन्फेंट ही रहेगा थ्रू आउट द जर्नी। नाउ इवन इफ द इन्फेंट टर्न्स 2 years of age en route before the termination of the journey. What do you mean by termination? End. Before the end of the journey, the fare is based on the original age of the passenger during the time of commencement of travel. Now, let's talk about unaccompanied minors. अभी हमने 3 टाइप के पैसेंजर्स को डिस्कस किया, चाइल्ड, इन्फेंट एंड अडल्ट। चाइल्ड भी अकम्पेन्ड होता है अडल्ट के साथ, इन्फेंट भी अडल्ट के साथ अकम्पेन्ड होता है। जब इन्फेंट सीट ऑक्यूपाई करता है तो वो चाइल्ड फेयर पे करता है, इन्फेंट विद सीट। फिर भी वो किसके साथ होगा, अडल्ट के साथ होगा, पेज चाइल्ड फेयर। लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। एक और कॉन्सेप्ट है जो कि है अनअकम्पेन्ड माइनर्स का। A minor who is at least 8 years old but below 12 years of age, मतलब 8 to 11 years के बीच में जो भी पैसेंजर होगा उसको हम कहेंगे माइनर। Whether or not accompanied by a passenger paying the adult fare pays the applicable child fare. अब इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जब भी अनअकम्पेनिड माइनर होगा, चाहे तो वो अडल्ट के साथ ट्रैवल करे या ना करे, क्योंकि वो कितने साल का है, 8 साल से लेके 11 ईयर्स तक, चाहे तो वो अडल्ट के साथ ट्रैवल करे या ना करे, वो हमेशा कौन सा फेयर एप्लीकेबल देगा, चाइल्ड फेयर। इज इट क्लियर? चाइल्ड होता है 2 साल से लेके 11 इयर्स तक, लेकिन अनअकम्पेन्ड जो माइनर होता है वो होगा 8 इयर्स टू 11 इयर्स, मतलब ऐसा पैसेंजर जो कि अकेले ट्रैवल कर सकता है लेकिन वो फिर भी चाइल्ड ही कंसिडर किया जाएगा। So that's why unaccompanied minor.
Exception for this is for children who have not reached their 8th birthday and who are not accompanied by an adult. Such minors pays 100% of their adult fare. अब ये केस तो हमें समझ में आ गया कि वो 8 ईयर्स से 11 ईयर्स के बीच में है, तो वो जा सकता है अकेला, और वो कौन सा फेयर पे करेगा? चाइल्ड का। लेकिन अगर वो माइनर है, अनअकम्पेन्ड माइनर है, और वो अभी 8 ईयर्स का नहीं हुआ, कब? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रैवल पे। जब उसका ट्रैवल स्टार्ट होगा वो 8 ईयर्स का नहीं है, मतलब वो पूरा अडल्ट फेयर पे करेगा, even though that passenger is unaccompanied minor. I hope this concept is very clear. इसमें कुछ भी इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन काफी कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े नहीं होते। तो एग्जाम में मोस्टली ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, कोई आपको सॉल्व करने को क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं देगा, ना वहाँ पे सॉल्व करने को क्वेश्चंस आते हैं कि आप फेयर कैलकुलेट करके हमें बताओ। They never ask such questions. All they ask is about concepts. So now I hope आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। इसमें कुछ भी इतना कंफ्यूजिंग तो नहीं है, लेकिन बस ये कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स और ये डेफिनेशंस और जितना भी मैंने नोट्स इसमें वीडियो में आपको शो किया है ऑन स्क्रीन, इसको आप अच्छी तरह पढ़ लोगे तो आप एग्जाम में आराम से कोई भी कंसेप्शन क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। There's no such thing as difficult question or out of syllabus question in the exams. All the questions are asked based on your knowledge. So if you have a better knowledge and understanding of each and every topic, you can clear the exam in first go. So that's all for the day. Have a nice day. Thank you for watching. Bye bye.